गिर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ने मेरे बलबीर कौर रंधावा ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਲਾਮ ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਦੋਸਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਨਾਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਲਿਸਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਯੋਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਯੋਗਾ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਯੋਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯੋਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਮਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਯੋਗਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਬਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੋਗਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਨੂੰ, ਤਿੰਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਸਾਈਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪੂਜਾ ਪਾਂਡੇ। ਪੂਜਾ ਪਾਂਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੂਜਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ हैं काशी टीवी ਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ। ਪੂਜਾ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू काशी टीवी। हेलो, नमस्ते एवरीवन। सभी को वेलकम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर बलवीर टुडे। मेरा नाम पूजा पांडे है और मैं योगा सिखा रही हूँ पिछले 6+ ईयर्स से। और मैं अलग अलग जगह जाके जिम्स में और ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से मैं योगा सिखाती हूँ और ये मैं सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। एंड ये जर्नी मैंने अपने खुद की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए स्टार्ट की थी एंड नाउ आई एम टीचिंग अदर्स एज वेल। सो पूजा, आपने बताया कि आपकी जर्नी जो सी है योगा की काफ़ी डिफरेंट है। कई होते हैं कि शुरू से उनको पता होता है कि मैंने योगा करना है, मैंने योगा टीचर बनना है, पर आपकी जो सी जर्नी है वो काफ़ी डिफरेंट थी। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या लगा आपको कि मैं योगा टीचर मैंने करना है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड पहले कुछ और था जहाँ तक मुझे पता है। सो थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आपने योगा को ही क्यों चुना और क्या योगा ने आपको क्यों चुना। ये दोनों कंबाइन आई थिंक टुगेदर होते हैं जैसे आपने मुझे बताया, लेकिन थोड़ा सा जो उनसे हमारे व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता कि आपने योगा किस लिए चॉइस थी आपकी कि नहीं चॉइस थी, किस वजह से योगा आपकी ज़िंदगी में आया। योगा मेरी ज़िंदगी में एक्चुअली मेरी खुद की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ की वजह से आया। तो ये मेरी चॉइस नहीं थी। एक तरीके से मैं कहूँगी कि जब मैं काफ़ी आज से 10 साल पहले मैं काफ़ी कुछ फ़िज़िकली और मेंटली चीज़ों से गुज़र रही थी, तब मुझे पता नहीं था। मुझे लगता था कि शायद यही मेरी ज़िंदगी है और मुझे ऐसे ही अब पूरा टाइम निकालना पड़ेगा।
क्योंकि मुझे सबसे पहले मुझे साइटिका की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब मेरा सेकंड चाइल्ड का बॉर्न हुआ। तो उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा साइटिका की प्रॉब्लम रहने लगी, मैं चल फिर नहीं पाती थी, मुझे बहुत पेन रहता था। फिर मेरे मेडिकेशंस स्टार्ट हुए, तो उसकी वजह से मैं मेंटली, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा पेन किलर, हाई डोज पेन किलर थे, तो जो मुझे मेंटली बहुत अफेक्ट करते थे। तो उसके बाद फिर मैं गिर गई और मुझे टेल बोन फ्रैक्चर हुआ। तो मुझे लगा मेरी लाइफ बस ख़त्म है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर धीरे धीरे मैं उससे रिकवर होना शुरू हुई, मुझे फिर से साइटिका दूसरा साइड हुआ। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद मुझे लगा कि इसी तरीके से मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। बट धीरे धीरे मुझे मेरे पेरेंट्स ने एनकरेज किया और उन्होंने कहा तुम एक बार योगा ट्राई करके देखो, शायद तुमको हेल्प हो। तो मैंने योगा करना शुरू किया और मैंने देखा कि मैंने जब स्टार्ट किया, धीरे धीरे योगा मुझे काफ़ी हेल्प करने लगा, मेंटली भी और फिज़िकली भी। मेरे धीरे धीरे पेन्स जाना शुरू हो गए, मेरी हाई डोज पेन किलर्स धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गई। मैं अपने आप को मेंटली बहुत हैप्पी एंड खुश, मतलब स्ट्रेस फ्री हो गई मेरी लाइफ। थोड़ा मैं डिप्रेशन से बाहर आने लगी। तो मुझे लगा कि दिस इज़ रियली गुड। मुझे लगा ये योगा बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मुझे हर तरीके से हेल्प कर रहा है। तो मैंने योगा को अपनी लाइफ में सोचा कि इसी को मैं अपना आगे कैरियर करती हूँ। और मैंने योगा का सर्टिफिकेशंस किए और फिर मुझे लगा कि अगर मैं इतना बेनिफिट इससे गेन कर सकती हूँ तो मैं दूसरों को क्यों ना कराऊँ। तो मैंने इस तरीके से लोगों को कम्युनिटी वर्क किया, मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की। और सबसे अच्छी चीज़ बलवीर कि मैंने जो है ये योगा स्टार्ट किया था कोविड के टाइम पे। तो जब कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया, जब सब लोग दुखी थे डिप्रेशन में थे, तब तो मुझे आप खुशी दे रहे थे। तब मैं ये शुरू किया, मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया और फिर मैंने दूसरों को भी उसमें ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया मैंने सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पूजा, जब आप योगा की बात करते हैं ना, तो आपके चेहरे पर एक कितनी बड़ी स्माइल आती है। उससे पता है कि आप कितना योगा को पसंद करते हैं और उसने कितनी आपकी लाइफ चेंज की है। स्पेशली जब हमें किसी चीज़ से एक नई ज़िंदगी मिलती है, क्योंकि हर एक की इंसान की एक लाइफ होती है जिसमें वो समझता है कि अब मेरी लाइफ जैसे फिनिश हो गई है। जैसे आपकी बीमारी की वजह से आपने सोचा कि अब पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, बट इसमें आई थिंक आपके जो उनसे पेरेंट्स थे उनको भी काफ़ी नॉलेज थी योगा के बारे में। जैसे आपने बताया कि उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस दोबारा कराया योगा से। सो पहले तो उनका भी थैंक यू कि उन्होंने अपनी बेटी की दूसरी लाइफ जो उनसी है स्टार्ट करवाई है। सो थैंक्स टू योर पेरेंट्स इज़ वेल कि उन्होंने एक और ज़िंदगी बचाई और हमें पूजा जैसी एक होनहार योगा टीचर दी है जिससे कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं और नॉलेज और अवेयरनेस योगा के बारे में। सो थैंक्स टू दैट इज़ वेल। पूजा, मैं एक बात जानना चाहूँगी कि जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको इंट्रोड्यूस कराया है ना उस टाइम पर, क्या आपको कितना ट्रस्ट था योगा पर? क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि पता नहीं यार होगा कि नहीं, योगा है क्या, जैसे मेरे जैसा इंसान है ये सोचेगा कि एक्सरसाइज है सिर्फ, इट्स नॉट मेडिसिन, है ना। योगा, मैं जानना चाहूँगी कि योगा है क्या? योगा एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट पहले नहीं था। मैंने जब देखा कि मेरे पेरेंट्स कराते थे लोगों को योगा, और वो ओल्ड एज लोगों को कराते थे, उनके खुद की काफ़ी हेल्प हो रही थी उससे, तो इसीलिए उन्होंने मुझे एनकरेज किया और मुझे लगा कि चलो मैं एक बार ट्राई तो करती हूँ, क्योंकि वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, इतनी सारी मेडिसिन्स और सब चल रहा है। तो मुझे लगा चलो एक यही चीज़ सही, तो इसीलिए मैंने ये योगा स्टार्ट किया। बट ये योगा है क्या? एक्चुअली योगा इज़ ए यूनियन। ये यूनियन है आपकी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट का, जिसमें आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट दोनों एक लाइन, तीनों चीज़ें एक लाइन में आती है और आपकी बॉडी को बैलेंस करती है, जिससे आप बहुत हेल्दी और आपको बहुत अच्छा बैलेंस्ड फील होता है अपनी बॉडी में। एक बात और मैंने आपकी नोटिस की कि कि आपके पेरेंट्स कराते थे योगा क्लासेस, एंड हम सब, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना, जितने भी आई थिंक हमें वॉच कर रहे हैं या जिनका एक्सपीरियंस हुआ है योगा में, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है कि ये सिर्फ बूढ़ों के लिए सो ओल्ड एज, जैसे आपने बताया कि बुजुर्ग लोग थे, आपके मम एंड डैड करवाते थे, तो फर्स्ट थिंग हमारा थॉट जो सा योगा के बारे में ये है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो ऐसे योगा वगैरह करता है। पर जो सा आप योगा अब कराते हैं, यू आर डूइंग सो मेनी क्लासेस वगैरह आप चलाते हैं, तो
कौन कौन से टाइप के लोग आपके पास आते हैं? बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं? क्या अब भी वो योगा को उसी नज़रिए से देखा जाता है जो कि पहले देखा जाता था, कि कुछ तब्दीलीज हमारे आजकल के जो उनसे बच्चे हैं उनमें आ रही है योगा के बारे में? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि योगा कोई भी एज बेस्ड नहीं है। योगा किसी भी सब एज के लिए, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ बुढ़े लोग योगा कर सकते हैं या जवान लोग योगा कर सकते हैं या बच्चे। मुझे बल्कि इस चीज़ का सबसे ज़्यादा दुख है कि मैंने ये योगा अपनी लाइफ में सबसे स्टार्टिंग में जब मैं बच्ची थी तब से क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है योगा के लिए कोई एज, कोई जेंडर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कभी भी योगा स्टार्ट कर सकते हैं और जितनी जल्दी योगा स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में उतना बेहतर है। तो जैसे मेरे पेरेंट्स जब कराते थे तो क्योंकि उन्होंने भी बहुत लेट स्टार्ट किया योगा एक्चुअली, तो जब वो उन्होंने स्टार्ट किया तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। शायद इसीलिए उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि तुम अभी से शुरू करो तो लाइफ में बेटर हो जाएगा बाद में तुम्हारे को। तो अब मैंने सीखा तो मुझे लगता है कि नहीं, बच्चों को मुझे एनकरेज करना चाहिए कि तुम और जल्दी शुरू करो ताकि और अच्छा होगा तुम्हारे लिए लाइफ में। तो ये एज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है और मैं हर किसी को योगा कराती हूँ, बच्चों को, बड़ों को, यंग पीपल को और इवन मैं ओल्ड एज पीपल को, डिसेबल्ड पीपल, जहाँ पे भी ऑप्शन है योगा कोई भी कर सकता है। पूजा, जैसे आपने बताया कि योगा कोई भी कर सकता है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि जो उनसे बच्चे होते हैं उनसे कि पहले ये जान लें कि जो उनसे योगा होता है किस किस तरीके का होता है, कौन से आसन या जो भी उसमें ब्रीदिंग, क्या क्या टेक्निक्स वगैरह होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे बच्चों को कैसे योगा सिखा सकते हैं हम। ओके, तो योगा एक्चुअली आज के डेट में योगा बहुत सारे तरीके के योगा हैं हमारे आसपास। आप देखोगे कि अष्टांगा योगा, हाथा योगा, बहुत सारे नाम हैं अभी योगा के। पर जो हमारा बेसिक और एंशिएंट योगा है वो है हठ योगा, जिसे हठ योगा भी बोलते हैं और हाथा योगा भी। तो वो बेसिक है और जो उससे आप बेसिकली आप बिगनर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो हमारे जो योगा है, योगा में हम ध्यान देते हैं माइंड के ऊपर। तो माइंड मतलब कि प्राणायाम, हम प्राणायाम ब्रेथ वर्क से शुरू करते हैं, जो कि हमारे ब्रीदिंग टेक्निक्स में हम डिफरेंट तरीके की ब्रीदिंग टेक्निक्स बताते हैं, जिससे हमारा माइंड काम होता है, स्ट्रेस फ्री होता है, हम रिलैक्स फील करते हैं, अच्छी नींद आती है। तो ये सारी चीज़ें हम प्राणायाम में करते हैं। फिर आता है हमारा पोस्चर्स, मतलब हमारा आसनास, जिसमें हम डिफरेंट पोजेस करते हैं। अब जैसे लोगों ने सुना होगा सन सैल्यूटेशन के बारे में, तो इसी तरीके से बहुत सारे पोस्चर्स हैं जिन पे हम काम करते हैं। वो हमारा आसना में आता है जो हमारी बॉडी के लिए वर्क करता है। और तीसरा हमारा आता है मेडिटेशन, जो कि ध्यान है, जिसमें हम अपनी स्पिरिट के लिए, हम अपने आप को, हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, हम सेल्फ से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, और हम रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड अ मेडिटेशन। तो हम ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करके योगा करते हैं। कितने अच्छे तरीके हैं कि बाहर अंदर सबकी दुनिया एक रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर जो सा योगा बना देता है कि इतनी डेप्थ में हमने कभी योगा के बारे में बात नहीं की है काशी टीवी पर। सो आई एम रियली हैप्पी कि आपने जिस तरीके से पूजा एक्सप्लेन किया, इट्स अ रियली ब्यूटीफुल वे कि ब्रीदिंग, पोस्चर एंड मेडिटेशन तीनों को साथ लेकर जो उनसे योगा को कंबाइन किया जाता है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि जो उनसे योगा है सिर्फ एक फिज़िकल एक्सरसाइज है कि हमें सब आसन करने हैं, लेकिन उसमें ब्रीदिंग और मेडिटेशन जब जुड़ जाता है तो एक कंबाइन जो है ना गुड कहते हैं कि हेल्थ के लिए, कि आपकी फ़िज़िकल और मेंटल इमोशनल्स को आपको किस तरीके से रिकवर करता है। समटाइम जब हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो हम फिज़िकली तो फिट हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो सा माइंड होता है वो इतना हेल्थी नहीं होता, क्योंकि एक हमें चीज़ नज़र आती है कि इसमें नुक्स है, हमें ठीक करना है। जो से हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उससे ठीक करने के लिए हमारी ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन जो सी है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है योगा में। सो पूजा, जब आप स्टार्ट करते हैं योगा, आपको क्या क्या, जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है आपके लिए, तो उसको क्या क्या अपने नज़र में रखना चाहिए जब योगा के लिए आता है, क्या क्या चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, या क्या वो माइंड लेकर आए कि योगा उसे क्या दे सकता है? मैं कहूँगी जब भी आप योगा सीखने के लिए बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले आपको फ्री माइंड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको ये सोचना है कि बस मैं वहाँ अपने हेल्थ के लिए जा रहा हूँ,
तो सबसे अच्छा बेनिफिट आपको तभी मिलेगा। कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए दिमाग में कि मैं क्या करूँ, क्योंकि योगा आपका इस तरीके से है कि योगा बहुत बिगनर बेसिक से बहुत शुरू करा सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि जाते ही बहुत आपको इंटरमीडिएट आसनास करने हैं, तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है योगा में। तो सबसे पहली चीज़। दूसरा, जब आप आते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी किस तरीके से, आपकी बॉडी योगा को किस तरीके से ले रही है। तो ऑलवेज़ लिसन टू योर बॉडी। आपको अपनी बॉडी को सुनना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर की आवाज़ सुननी बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा, जब भी आप योगा के लिए आएँ तो रिलैक्सिंग क्लोथ पहन के आएँ, ताकि आप परेशानी में ना हो। टाइट क्लोथिंग हो या हैवी क्लोथिंग होती है तो बहुत परेशानी हो जाती है, लोगों को कर नहीं पाते हैं, मोशन आपके लिमिटेड हो जाते हैं, तो बहुत परेशानी होती है, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप योगा के लिए आएँ आपको मेक श्योर करना है कि आप खाली पेट हों, जितना हो सके खाली पेट, या बहुत लाइट स्नैक हो तो एटलीस्ट 1 घंटे पहले आपने खाया हो खाना, हल्का फुल्का। अगर आपने हैवी है तो एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स बिफोर। जितना हो सके खाली पेट हो, उतना अच्छा आप फोकस कर पाएंगे योगा के ऊपर। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको बेसिकली ध्यान रखनी है जब भी आप आ रहे हैं, और रिलैक्स होके आना है, टेंशन नहीं लेना है बस। ये सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए जा रहे हैं, एंड उसमें आपकी फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल सारी चीज़ें जो उनसे चेंज होने वाली हैं। एंड अगर आप पूजा से पहले भी बात कर सकते हैं या किसी भी योगा टीचर से जिससे आपने क्लासेस लेनी है, उससे फ़ोन कर पूछ सकते हैं कि हमारी मेडिकल कंडीशन ये है, तो हम क्या क्या लेकर आएँ। बेसिकली जो भी योगा क्लासेस होती हैं उसमें आपको बताया जाता है कि ये चीज़ें, ये टाइमिंग है, तो उसके मुनाफिक आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा टाइम सूट रहेगा, कब खाना है, कब पीना है, कौन से कपड़े चाहिए, कई बार ये भी बताया जाता है। अगर फिर भी आपको ना पता लगे तो जो भी योगा क्लासेस करा रहे हैं उनसे आप बेझिझक बात कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं। इवन मेडिकल, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसकी वजह से आपको उस टाइम पर रिस्ट्रिक्शन है, तो वो भी आप पूरी बात अपने योगा टीचर के साथ कर सकते हैं, क्योंकि योगा टीचर को सारी बात बताना बहुत ज़रूरी है। कई बार कई एक्सरसाइज हो सकता है, कई योगा जो उनसे है वो आपके लिए सूटेबल ना हो, तो आप पहले ही उनसे कंसल्टिंग तौर पर फ़ोन पर बात कर ले तो वो बेहतर रहता है। और हम पूजा का नंबर भी यहाँ पर छोड़ जाएंगे, अगर आपने पूजा से बात करनी हो तो आप बाद में कर सकते हैं, काशी टीवी पर इनका नंबर होगा। सो पूजा, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि जो बेनिफिट आपने देखे हैं, तो आई थिंक जब तक हमें मुनाफा ना पता हो कि इस चीज़ का क्या मुनाफा है, इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, तो तब तक हम वो चीज़ करना नहीं चाहते। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप बताएं कि योगा जो सा है वो हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है, क्या क्या आपने देखा है कि मेंटली, इमोशनली किस तरीके से इसमें लोगों की मदद हुई है। मैं आपको इसको स्प्लिट करती हूँ 3 भागों में। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि आपका फ़िज़िकल बेनिफिट क्या होता है, योगा से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी बॉडी के पोस्चर्स करेक्ट होते हैं, आपकी बॉडी का बैलेंस सही होता है। और मैं खुद उस चीज़ का एग्जाम्पल हूँ, जो मैं चल नहीं पाती थी और मैं आज अच्छे से चलती हूँ, भागती हूँ, दौड़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आपके पेन्स जो है वो दूर हो जाते हैं। और मैंने देखा है इतने लोगों के पोस्चर इतना ख़राब होते हैं तो सीधा खड़ा नहीं हो पाते, सीधा बैठ नहीं पाते। आपका पोस्चर करेक्ट करता है योगा। तो ये सारे बेनिफिट आपको फिज़िकली योगा करने से मिलते हैं। और जब मैं बात करूँगी मेंटली, तो मेंटली जब आप ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं तो आपका जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आपका डिप्रेशन है, ये सब चीज़ें दूर होती हैं। और आपकी जो स्लीप है उसका इम्प्रूवमेंट होता है, आप अच्छा बेटर स्लीप कर पाते हैं। और जो आपकी मेंटल क्लैरिटी है वो क्लियर हो जाती है, आप मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। तो ये आपका बेनिफिट होता है प्राणायाम से। फिर आते हैं हमारा स्पिरिचुअल, मतलब ध्यान, जो कि आपको इतना रिलैक्स करता है, आपकी बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को, अंदर से बाहर से सारी चीज़ें, कि ये आपको अपने आप से मिलवाता है। ये एक बहुत अच्छा इनर जर्नी है आपकी, मतलब अपनी खुद की जो पहचान है आप वो जान पाते हैं। मेडिटेशन से आप अपने आप को जानते हैं, और अपने आप को जानते ही नहीं बल्कि आप स्पिरिचुअली भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं, और आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। मतलब एक इतनी बेहतर फीलिंग होती है कि आपको लगता है कि आप एक बहुत सेफ़ एनवायरनमेंट में, बहुत सेफ़ प्लेस में फ़ील करते हैं।
तो ये जब बेनिफिट्स आपको दिखना शुरू होते हैं तो आपको समझ में आता है योगा मैजिक है, लाइफ चेंजिंग इवेंट है डेफिनेटली। वाह। सो अगर हम बेनिफिट्स की बात करना चाहिए होगा, इट्स लाइक यू नो पूरी लिस्ट आई थिंक कम होगी, हमारे पास टाइम कम होगा कि हम इतने बेनिफिट उसके आपको बता सकें योगा के, क्योंकि हर एक बीमारी का इलाज उनसा योगा से हो सकता है। नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो ज़रूर आ सकते हैं। आयदा अगर आप जैसे आप सीन, क्योंकि कैंसर के पेशेंट हो जाएं या डायबिटीज़ हो जाए, ब्लड प्रेशर एंड हमने कैंसर के पेशेंट में बहुत देखा है, आई मीन अगर रिसर्च के ज़रिए से बात करें कि उनको बहुत हेल्प होती है जब वो मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो उनसे करते हैं उनसे, तो हर एक बीमारी में कुछ ना कुछ तब्दीली ज़रूर आती है। तो जो उनसे ब्रीदिंग है वो कितनी ज़रूरी है कि आपकी राइट ब्रीदिंग हो, जो कि योगा में देखा जाता है। तो थोड़ा सा मुझे ब्रीदिंग के बारे में आप बताएंगे पूजा की ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए, ताकि हमारे जो उनसे व्यूअर्स हैं उनको राइट ब्रीदिंग के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं डेफिनेटली ये बताना चाहूँगी क्योंकि ब्रीदिंग सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है योगा में। तो जब आपकी ब्रेथ अच्छी होती है, सही होती है, तो आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं, क्योंकि आपके ऑर्गन्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है, तो आपके ऑर्गन्स अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ दिस। तो हमारी ब्रीदिंग कैसे सही होगी या कैसे सही आप कैसे पता लगा सकते हैं, तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ सबके साथ। तो अगर आप देखना चाहें तो अपना एक हाथ चेस्ट पे रखना है और एक हाथ टमी पे रखना है। ओके, ऐसे ठीक है? रखना। हाँ। और फिर आपको धीरे से इनहेल करना है एंड एक्सहेल। अब आपको ये फोकस करना है कि जब आपने इनहेल किया तो आपने क्या टमी बाहर गया या अंदर आया? आप मुझे बताइए बलबीर। मेरा तो अंदर गया। ये गलत ब्रीदिंग है। तो यही है टेक्निक ब्रीदिंग को सही पहचानने की, कि अगर आप सही ब्रेथ ले रहे हैं या नहीं। तो जब आप इनहेल करते हैं तो आपका टमी बाहर आना चाहिए। जब बाहर आता है तो क्या होता है, अंदर आपके ऑर्गन्स को स्पेस मिलता है, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाती है और सब जगह अच्छे से आपके ऑर्गन्स में पहुंचती है ऑक्सीजन। और जब एक्सहेल करते हैं और टमी अंदर जाता है तो सारी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और आपका पूरे ऑर्गन्स रिलीज़ करते हैं, तो अंदर जाना चाहिए। तो ये करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग है। और अगर आपने ये ब्रीदिंग स्टार्ट कर दिया, इवन आफ्टर आप 1 हफ्ते के बाद ही आपको इसका बेनिफिट दिखने शुरू हो जाएंगे। और फोकस करना पड़ेगा कि एवरी टाइम अपने आप को ध्यान दिलाना है कि नहीं मुझे सही ब्रीदिंग करनी है, नहीं मुझे सही ब्रीदिंग करनी है। तो फोकस करें और अपनी छोटी सी आदत को चेंज करके और उसका बेनिफिट लेना शुरू करें। सो ये बहुत बड़ी बात है, जैसे आपने कहा कि 50% जो उनसे हमारी प्रॉब्लम्स है राइट तरीके से ब्रीथ करने से ही ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो आई थिंक जो उनसे ये टेक्निक है हमारे जो उनसे व्यूअर्स है ज़रूर अपनाएंगे कि राइट ब्रीदिंग जो उनसे सबसे बड़ी बात है कि पहले जैसे पूजा ने आपको बताया है। एक बार पूजा मैं चाहूँगी कि दोबारा आप इस बात को रिपीट कर दें कि राइट ब्रीदिंग जो उनसी है वो क्या होती है। थोड़ा सा एक बार अगर आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि जिनको इजी तरीके से समझ आए कि हमने राइट ब्रीदिंग, जिनकी रॉन्ग है, जैसे मेरी रॉन्ग ब्रीदिंग है, तो अगर इसको राइट करना है तो वो कैसे करना है, और इज़ इट अ स्पेसिफिक टाइम उनको राइट करना चाहिए? सुबह उठते, जैसे मैंने बात की कि हम उठते हैं तो स्ट्राइट अवे वी स्टार्ट टू ब्रीथ। हम जैसे हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी ब्रीदिंग रॉन्ग है और राइट है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है फर्स्टली, क्योंकि मैंने पहली बार आपसे सुना है कि हमारी ब्रीदिंग भी राइट एंड रॉन्ग होती है। तो जब हम सुबह उठते हैं उस टाइम से ही हमें अपनी ब्रीदिंग को चेक करना चाहिए क्या? एक्चुअली ये ब्रीदिंग आपको 24/7 चाहिए। अरे बाप रे बाप। तो लेकिन क्योंकि स्टार्ट जब करनी है तो डेफिनेटली बहुत हार्ड होता है, किसी के लिए भी अपनी नॉर्मल रूटीन से चेंज करना बहुत हार्ड चीज़ है। पर हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो मैंने बताया आपको कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, कि आपको जब भी टाइम मिले या जब भी आप बैठे हैं, सोच रहे हैं कुछ भी, आप फोकस कीजिए कि अच्छा मुझे अपनी ब्रीदिंग को सही करना है। और आप अपना वही स्टमक पे हाथ रखेंगे, एक हाथ चेस्ट पे रखेंगे और फोकस करेंगे कि मैं इनहेल करना है और आपका टमी आउट होना चाहिए, बाहर आना चाहिए, और एक्सहेल करते हुए आपका टमी अंदर जाना चाहिए। अब इस ब्रीदिंग को कंटिन्यूसली करने की कोशिश करनी है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत हार्ड लगेगा पहले, तो आप एक्सहेल के साथ स्टार्ट कीजिए, फिर इनहेल कीजिए, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपको।
फिर उसके बाद आपको फोकस करना है कि जब भी आप बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, एवरी टाइम आप जैसे ही इस चीज़ को बार बार अपने दिमाग में लाना शुरू करेंगे कि मुझे ये करना है, मेरी ब्रीदिंग को करेक्ट करना है, तो धीरे धीरे आप थोड़े टाइम के बाद आप जब आपका फोकस बढ़ता जाएगा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ब्रीदिंग कब ठीक हो गई है। तो ये छोटा छोटा आप स्टेप लेना शुरू करेंगे और कब वो बड़ा स्टेप में बदल जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। एंड मोर लाइकली है ना पूजा, इट्स लाइक अ माइंडफुलनेस एक्सरसाइज इज वेल। जब हमारा ध्यान हमारी सांसों पर चला जाता है Exactly. तो काफ़ी कुछ चेंजेस आने चालू हो जाते हैं, इज़न्ट इट। सो अब थोड़ा सा हम जानेंगे कि जो सी योगा क्लासेस होती है, जब आपके पास कोई आता है योगा की फर्स्ट क्लासेस के लिए, तो आप क्या देखते हैं उसमें, उसको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? फर्स्ट क्लास के लिए कोई भी आता है तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि प्लीज़ अपनी बॉडी को जानिए और उसके हिसाब से ही काम कीजिए। मेरा सबसे यही बोलना होता है कि किसी को भी फोर्स नहीं करना है अपनी बॉडी को। एक दिन में कोई भी मास्टर नहीं होने वाला है, तो अपने आप को धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके शुरू कीजिए। और हो सकता है आप एक बार में योगा पूरा 1 घंटा ना कर पाएँ, तो आप 15 मिनट 20 मिनट धीरे धीरे करके स्टार्ट कीजिए। और जब भी योगा स्टार्ट करना है, मेरा हमेशा सबसे ये रिक्वेस्ट होता है कि आप सारी चीज़ों पे फोकस कीजिए, ब्रीदिंग पे भी, आपके एक्सरसाइज उन पे और पोस्ट पे भी, और आपको मेडिटेशन, तीनों चीज़ें कंबाइन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं बलबीर की जो आते हैं क्लास में, कहते हैं अरे नहीं हम 5 मिनट लेट हो गए, क्योंकि दे वांटेड टू स्किप, वो उनको स्किप करना है स्टार्टिंग का 5 मिनट। ओके। और कुछ लोग होते हैं 5 मिनट जल्दी जाते हैं कि हमें जल्दी जाना है। क्यों? क्योंकि उनको रिलैक्सेशन नहीं करना है, उनको लगता है रिलैक्सेशन से कुछ नहीं होगा। पर मेरा मानना ये है कि जितना ज़रूरी आपके पोस्चर होते हैं, उतना ही ज़रूरी आपका मेडिटेशन होता है। सेम लेवल आपका मेडिटेशन में देना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आपको कंबाइंड फुल योगा करना है। तो जो भी मेरे पास आएगा, मैं सबसे यही बोलूँगी कि अपनी बॉडी के बारे में जानिए, सोचिए, और अपनी बॉडी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहिए, जब भी योगा करने आ रहे हैं इंजॉय कीजिए। इंजॉय करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। एब्सोल्युटली। एंड योगा में तो एक लाफ योगा भी होता है ना? हाँ बिल्कुल, लाफिंग थेरेपी वो आप अपने सेशन में कराते हैं? हाँ, मैं ये वाला योगा स्पेशली मैं जो ओल्ड एज होते हैं पीपल, या चेयर योगा जिनको कराती हूँ, या डिसेबल्ड पीपल, उनके साथ में ये चीज़ें ज़्यादा करते हैं, क्योंकि दे नीड दैट टाइम। जो उनको ये बहुत ज़रूरी वाला टाइम होता है उनके लिए, हंसना, जो मुझे लगता है कई बार वो लोग भूल जाते हैं। इसे क्या कहते हैं उसे? हास्य योग मुझे पूरा नाम नहीं पता नहीं, उसको बस हंसना ही है, मतलब उसमें कुछ नहीं है। लाफिंग थेरेपी बोलते हैं। लाफिंग थेरेपी। हाँ। तो मतलब उसमें जितना खुल के हंसेंगे, जितना अंदर से अपनी ब्रेथ को निकाल के बाहर लाएंगे, अपने आप को निकाल के लाएंगे। मैंने कई बार देखा है लोग हंसते हंसते रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस बाहर आने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छी थेरेपी है, मतलब तो मुझे लगता है लाफिंग थेरेपी है या योगा है, कुछ भी करते हैं, मैंने देखा है मेडिटेशन कराते टाइम बहुत लोग रोने लग जाते हैं। तो वो उनके बहुत सारे इमोशंस बाहर आ रहे होते हैं, मतलब वो अपने आप को रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं देखती हूँ, मैंने क्लास में देखा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत, और मुझे बहुत सेटिस्फाइंग होता है कि मैंने कुछ ऐसा दिया कि जिससे वो लोग अपने आप को रिलीज़ कर पा रहे हैं, रिलैक्स कर पा रहे हैं अपने आप को। ये पूजा, ये जो उनसा होता है ना, आई मीन इमोशनल, हम सब ही इमोशनल कैरी करते हैं हम अपनी बॉडी में। चाहे वो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे स्टूडियो में आने से पहले, कि जो उनसे हमारे इमोशन होते हैं हर पार्ट बॉडी के में होते हैं। तो जब योगा जो उनसा है, जैसे इसमें 3 थिंग्स, माइंड बॉडी एंड सोल का कनेक्शन है, तो जो उनसे हमारे अंदर की चीज़ें हैं वो भी बाहर निकलती हैं, जिससे हमें ट्रॉमा, जिसे हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में काफ़ी ट्रॉमाज हुए होते हैं, बट योगा के ज़रिए से आई थिंक जो उनसे हम अपना फुली एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने को अंदर से भी हील कर सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो उनसे हम कहते हैं कि सोल की जो उनसे हमारी सर्च होती है, उसको भी हम उसकी तरफ भी चल सकते हैं। जब हमारा माइंड एंड बॉडी दोनों हील हो जाते हैं, तभी हम उससे आगे स्टेप्स ले सकते हैं, जो कि तीनों पर, जैसे पूजा ने बताया कि हम गौर करते हैं, तीनों को हील करते हैं, तीनों को आगे स्टेप बाय स्टेप लेकर जाते हैं। सो पूजा, जो उनसे आप योगा कराते हैं नॉर्मली, जो उनसे बेसिक
क्योंकि काफ़ी लोग जो इनसे हमारे देखने वाले होंगे योगा का एपिसोड ये वाला, काफ़ी लोग बिगिनर्स ने जो उनसे स्टार्ट कर रहे हैं योगा की जर्नी। तो योगा की जर्नी एक क्योंकि आई थिंक योगा इज़ फॉर एवरीबॉडी, ये किसी धर्म या स्पिरिचुअलिटी का नहीं है, सबके लिए ओपन है, इट्स अ यूनिवर्स। क्योंकि मैंने देखा कि हर एक जगह पर योगा कराया जा रहा है एंड इट्स नॉट फॉर वीमेन, इट्स नॉट फॉर चिल्ड्रन, इट्स फॉर एवरीबॉडी। जो भी है ऑन दिस अर्थ उसके लिए योगा जो सा बहुत ज़रूरी है। एंड हमारा योगा का ये मंथ भी आ रहा है, योगा की जो सा वी आर प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑन योगा कि हमारी जो उनसे संस्कृति है, पीछे का जो सा बैकग्राउंड है हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जिसमें योगा जो सा इट्स प्ले अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस। एंड वो जो सा प्लेटफॉर्म हम आज जो उनसे बच्चे उनको देना चाहते हैं कि जो उनसे हमारे आने वाले बच्चे हैं उनको योगा के बारे में पता लगे और उनको इतनी मेडिसिन या ऐसी चीज़ें ना लेनी पड़े जिनकी वजह से उनकी और हालत ख़राब हो। लेकिन योगा की तरफ अब जब बच्चों को जोड़ते हैं तो उनकी काफ़ी मेंटल हेल्थ जो उनसे वो इम्प्रूव होती है। तो थोड़ा सा अब मैं जानना चाहूँगी कि जो उनसे हमारे बच्चे हैं उनको हम कब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे उनको इंट्रोड्यूस करें योगा में, क्योंकि योगा जो सा है जैसे कि काफ़ी यंग एज से बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर पेरेंट्स ने घर में योगा बच्चों को सिखाना है तो वो किस तरीके से सिखाएं, क्योंकि कई पेरेंट्स को तो अभी अपने बारे में नहीं पता कि उन्होंने योगा कैसे करना है। तो अगर बच्चे को सिखाना हो तो आप पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस क्लासेस भी करते हैं या फिर सिर्फ क्लासेस जो सी एडल्ट्स के लिए होती हैं कि वुमेंस क्लासेस होगी या मेंस क्लासेस होगी, कि बच्चों की और पेरेंट्स की जैसे मदर एंड चिल्ड्रंस की क्लासेस, ऐसी क्लासेस भी आप करते हैं? एक्चुअली मैं सबकी अलग अलग क्लासेस होती हैं, चिल्ड्रंस की अलग रहती हैं, पेरेंट्स की एडल्ट्स की अलग हैं। लेकिन हाँ, ये भी बहुत एक अच्छा है आइडिया कि मैं पेरेंट्स और बच्चे साथ में मिल के करें। तो मेरी क्लास में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की क्लास अलग होती है, पेरेंट्स की अलग होती है, देन वो घर पे जाके कंपटीशन करते हैं कि मैंने ये सीखा एंड दिस इज़ राइट, ओके मैंने ये सीखा। तो फिर तो आप लड़ाई करवाती हैं। नहीं, लड़ाई नहीं, उसमें बहुत मज़ा आता है क्योंकि क्या होता है, अगर कोई अच्छा कर रहा है, बच्चा अगर ज़्यादा अच्छा कर रहा है और पेरेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उनको बोलती हूँ अपनी मम को बताना इसको ऐसे करते हैं, और बच्चों को मम को बोलती हूँ कि अपने बच्चों को इसको आगे पहुँचाओ। और बच्चे सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं जब पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं, तो काफ़ी अच्छा उनको लगता है अगर पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हों। तो बच्चों के लिए एक तो ये फ़न के तरह अगर इसको योगा को कराया जाए तो सबसे बेस्ट होता है। और बच्चों की एज योगा स्टार्ट करने की है 5 इयर्स, मतलब 5 इयर्स प्लस बच्चे आप स्टार्ट कर सकते हैं योगा। अपने पेरेंट्स मतलब आप अपने बच्चों को स्टार्ट करा सकते हैं 5 इयर्स के बाद से। इवन मैंने देखा है और छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, काफ़ी ध्यान देना होता है उनके ऊपर, बट 5 ईयर प्लस आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। बच्चों के साथ कीजिए, मज़े लीजिए उनके साथ, और क्या नाम है, आप उनको एनकरेज कीजिए, वो आपको एनकरेज करेंगे, तो बेस्ट बॉन्डिंग होगी आप लोगों की। सो पूजा हाउ टू क्योंकि बच्चों को सिखाना कई बार बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। सो कैसे कैसे कौन कौन सी टिप्स आप दे सकती है पेरेंट्स को कि वो इस तरीके से बच्चे को योगा कराएं तो उसमें उनको सफलता हासिल हो सकती है, कि ये स्टाइल से आप योगा करें अपने बच्चे के साथ तो उसको थोड़ा सा फ़न लगेगा। कुछ टिप्स जो आप अपनी क्लासेस में यूज़ करती हैं प्लीज़ हमारे जो उनसे व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर करें। हाँ, मैं बहुत अच्छा है ये, क्योंकि योगा में ना बहुत जो पोजेज़ हैं उनके नाम सब एनिमल्स, काफ़ी सारे एनिमल्स के नेम हैं। तो हम क्या होता है, मैं अपने बच्चों की क्लास में जैसे कि मुझे है कि उसमें कैमल पोज है कि अभी हम कैमल बनेंगे, ठीक है। और तो उन बच्चों को योगा कराने के लिए आपको भी बच्चा बनना पड़ता है। तो क्या होता है, उनके साथ गेम्स के थ्रू, मैंने बल्कि आजकल देखा है कि स्कूल्स में जो योगा का जो लोग करा रहे हैं उसमें उन्होंने पूरा A to Z फुल योगा के पोज डाले हैं। दैट्स नाइस, वेरी नाइस, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के। और वो उसको फ़न एक्टिविटी एज अ गेम, एज अ स्टोरी टेलिंग, इस तरीके से योगा कराते हैं।
तो जैसे कि मैंने बता रही थी कि ये आपका कैमल पोज है, तो हम बोलते हैं अब हम कैमल पोज में जाएंगे, कैमल बनेंगे, तो बच्चों को बड़ा मजा आता है, अच्छा कैमल भी होता है इसमें, हम कैसे बनेंगे कैमल। ऐसे डाउन डॉग है तो अभी हम डॉग बनेंगे तो मतलब इस तरीके से बच्चों को कराएंगे तो थोड़ा उनकी समझ में भी बहुत अच्छे से आता है और ईजी हो जाता है उनके साथ ना, फन के थ्रू उनको समझाना काफ़ी ईजी होता है। तो हमारे बहुत सारे जैसे फ्रॉग पोज है, तो अभी हम फ्रॉग बनेंगे, अभी हम जंप करेंगे तो मतलब उन लोगों के साथ में आपको बच्चा बनना पड़ता है बच्चों के साथ में। तो दिस वे इज़ रियली अ बेस्ट वे टू टीच किड्स। सो इट्स जैसे हम आई थिंक इज़ मोर लाइकली आपको एक टीचर जैसे हम करते हैं ना रोल प्ले करके या कोई नर्सरी राइम टाइप थिंग्स करके, सो उसके साथ आप इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों की एक्टिविटीज़, जैसे एनिमल जैसे आपने बताया कि नाम वगैरह करके उसके पोज जो उनसे है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, सर्टन पोज सिंपल पोज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो बच्चों को कैसे करा सकते हैं फॉर बिगिनिंग फर्स्ट, जैसे बच्चे ने अभी स्टार्ट करना है तो कैसे पेरेंट्स फादर या मदर या ग्रैंड फादर्स एंड मदर्स भी हमारे देख रहे हैं प्रोग्राम, तो वो कैसे बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज से? ब्रीदिंग भी आप फन के थ्रू ही करा सकते हैं। आपको सबसे पहले उनको नॉर्मल ब्रीदिंग कराना है, उनकी ब्रेथ को करेक्ट कराना है। तो जितना आप उनको बताएंगे कि देखो ऐसे करो, मैं तो ऐसे अच्छे से कर पाती हूँ, मेरे तो इनहेल करने पे टमी बाहर आ रहा है, तुम्हारा नहीं आ रहा, मतलब उनके साथ एक्साइटमेंट। तो इस तरीके से, और आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीदिंग वर्क उनके साथ शुरू करना है। उनको एकदम से उनके ऊपर सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज नहीं डालने होते। तो जैसे छोटे छोटे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, आप अनुलोम विलोम है, आप कपालभाति है, आपका इनहेल एक्सेल, नॉर्मल इनहेल एक्सेल है, ये छोटे छोटे आप जो है उनके साथ करें और आंखें बंद करके चलो हम 5 तक काउंट करेंगे एंड कौन कितना इनहेल एक्सेल काउंट कर पाता है, कितनी देर होल्ड कर पाता है। तो जब आप उनके साथ करेंगे बच्चे इंजॉय करते हैं। मैंने देखा है जब मैं कराती हूँ बच्चों को क्लास में तो उनका फोकस बहुत जल्दी जल्दी भटकता है इधर उधर बट लेकिन जब उनको लगता है कि अच्छा मैं अच्छा कर रहा हूँ, उनको एनकरेज करना चाहिए, अरे वाह यू आर डूइंग रियली गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो जब ऐसी चीज़ें उनको छोटे छोटे उनको एनकरेजमेंट, उनको अच्छा बोला जाता है तो बच्चे इन सब चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और वो रेडी हो जाते हैं कुछ भी करने के लिए फिर कि मतलब हाँ। तो छोटे छोटे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन बच्चे नहीं बैठ पाते तो उनको जैसे कंफर्टेबल हो, लाई डाउन करना है, बैठ के करना है, आंखें बंद करके करना है, आंखें खोल के करना है, स्माइल करना है, नहीं करना, छोटा छोटा फोकस करवाना है ताकि वो मतलब अच्छे से मेडिटेशन करें। करते हैं बच्चे। सो पूजा जो उनसे मेडिटेशन की बात आपने की, मेडिटेशन के टाइम पर बच्चों को हम कैसे कहें कि कई बच्चे होते हैं कि दिन के टाइम मुझे आंखें बंद नहीं करनी, क्या आंखें बंद करके ही मेडिटेशन करना है, खोल कर नहीं कर सकते कि सिर्फ सर्टन टाइम या स्लीपिंग टाइम पर कुछ ना कुछ जैसे उसे हम इंस्ट्रक्शन दे सकें कि आप 2 मिनट आंखें बंद करें या ब्रीदिंग पर ध्यान दें, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन आप बताएं जो हमारे व्यूअर्स अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने ये सही कहा। जैसे कि बच्चे ही नहीं बड़े भी हैं जो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, आंखें नहीं बंद कर पाते मेडिटेशन में। तो उस समय के लिए मैं सबको बोलती हूँ कि आप आंखें खोल के करो लेकिन फोकस रखो एक जगह। मतलब अब अगर आपने आंखें खोली भी हैं तो एक पॉइंट पे फोकस कर लो और फोकस करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग और अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं। स्पेशली ब्रीदिंग की, आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, कितना ज़्यादा इनहेल किया। तो जब आपका फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे आप ब्रीदिंग पे फोकस करने लगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, हो सकता है आपकी आंखें कब बंद हो जाएं, आप कब रिलैक्स फील करना शुरू कर दें। तो इसी तरीके से बच्चों के लिए भी है कि बच्चों को फोर्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको आंखें बंद करनी है या खोलनी है। जैसे वो कंफर्ट होके रहना चाहें, बस थोड़ी देर उनको ये बोलना है कि 5 मिनट आपको साइलेंट में रहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को फोकस करना है, कितनी बार आपने ब्रीथ किया, कितना किया, और मैं 5 मिनट के बाद आपको पूछूंगी कि कितना आपने ब्रीदिंग किया। तो वो फोकस उनका एक पॉइंट पे रहेगा तो वो काफ़ी अच्छा मेडिटेशन कर लेंगे। दैट्स वंडरफुल की टिप्स, क्योंकि बच्चे जो उनसे स्पेशली आई थिंक सोने के टाइम पर भी ये टिप्स जो उनसे बहुत बढ़िया है कि जब तुम काउंट कर लो इतनी बार तो उसके बाद अगर नींद आ गई तो तुम सो जाओ। हाँ, है ना। हाँ, और ये आपने बिल्कुल अच्छा कहा। मैंने कितने लोगों को बोलते हैं कि हमें नींद नहीं आती, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप लेटें और लेटने के बाद अपनी फोकस करें अपनी ब्रीदिंग पे, इनहेल एक्सहेल, फोकस करना शुरू करें। आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि कब आप उस चीज़ से निकल के और कब आप नींद में चले गए।
कई बार, और बहुत सारे लोगों ने बोला कि इससे बहुत चेंज हुआ हमारे को, मतलब नींद आ जाती है, पता नहीं चलता हमको कब नींद आ गई। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आई थिंक इट्स स्पेशली जब एग्ज़ाम का टाइम होता है बच्चों के लिए, उस टाइम पर आई थिंक स्लीपिंग जो उनसे बच्चों के लिए काफ़ी समस्या बन जाती है, नींद नहीं आती क्योंकि सुबह एग्ज़ाम है या एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, या सर्टन स्पेशली व्हेन दे आर टीनेजर गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ थिंग्स, बिकॉज चिल्ड्रंस हम काउंट करते हैं अंडर 18, तो उसमें लॉट्स ऑफ थिंग टीनेजर जो उनसे होते हैं, कई उनको समस्या आ रही होती हैं, बॉडी को लेकर कंसर्न होता है, आवाज़ उनकी चेंज हो रही होती है, सो ऑल दीज थिंग्स जो उनसे रिलेटेड होते हैं बच्चों की लाइफ में, उसमें अगर हम जैसे पूजा ने बताया कि 5 साल के बच्चे को अगर हम ये सब में डाल दें, योगा में डाल दें, तो उनका काफ़ी जो उनसा स्वास्थ्य जो उनसा काफ़ी हद तक ठीक रह सकता है। तो स्लीपिंग के बारे में तो आई थिंक दिस इज़ रियली रियली गुड टिप, है ना पूजा, जो कि सब आई थिंक फॉर एवरीबॉडी इज़ गुड। इसमें कोई एज का नहीं है, बच्चों के लिए नहीं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं जिनको नींद की समस्या, कईयों को इंसोमिया की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती, तो कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रीदिंग बिफोर गोइंग टू स्लीप, जैसे पूजा ने मेंशन किया, तो ये बहुत बड़ी समस्या जो उनसे इंसोमिया की हल हो सकती है। अब थोड़ा सा हम जानेंगे बच्चों के बारे में, तो बात कर ली जो उनसे हमारी लेडीज़ है पूजा, जो उनसे हम लेडीज़ और तुम लेडीज़ हो, वी ऑल गो थ्रू, है ना, हमारी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, लेकिन जो उनसा टाइम होता है प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज का टाइम जो उनसा आता है वो काफ़ी लेडीज़ के लिए हार्ड होता है। एंड अगर हम आज से 30-40 साल पहले की बात करें तो नॉट मैनी पीपल नो कि मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज क्या होता था। एंड उससे पहले की बात करें तो क्योंकि योगा के साथ जो उनसे कई समस्या हल हो जाती थी, तो पता भी नहीं लगता था कि यू वेंट थ्रू अ मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज ये क्या है, किसी को नहीं मालूम था। आई मीन इफ़ आई आस्क माय मम शी वुडंट नो कि वो मेनोपॉज क्या होता है। बट अब हम जब देखते हैं साइन या सिम्टम्स, हमें सबको पता है कि मेनोपॉज से वी आर गोइंग थ्रू सर्टन एज के बाद जो उनसे चेंजेस आते हैं वो हमारे में आ रहे हैं। तो उसके बारे में पूजा मैं जानना चाहूँगी कि जो उनसा प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज है उसमें कौन कौन से योगाज हम कर सकते हैं जो उनसी लेडीज़ हैं, और कितनी इससे मदद मिली है आपको। तो क्लाइंट्स काफ़ी जानते होंगे जो आपके पास आते होंगे कि मुझे प्री मेनोपॉज है, ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो कितनी हेल्प उन औरतों की है आपने एक्चुअली जो आज की डेट में ये जो मेनोपॉज है वो काफ़ी खुलकर बाहर आया है। पहले के लोग कुछ नहीं जानते थे कि ये क्या होता है, बट अच्छा है क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो मेनोपॉज में क्या होता है, लोगों को बहुत सारी स्ट्रेस होता है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, और मूड चेंजेस, स्विंग होते हैं, जॉइंट पेन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेनोपॉज के साथ में आती हैं। और ये योगा इज़ द बेस्ट वे जो इन सारे सिम्टम्स को कम करता है। तो अगर आप योगा करना शुरू करेंगे तो आपको पता, मतलब आपका मेनोपॉज कब कैसे निकल गया, आपको बहुत ही स्मूथ मेनोपॉज निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए योगा मेनोपॉज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं कहूँगी कि मेनोपॉज में जो ये स्ट्रेस होता है लोगों को, योगा उसमें रिलैक्स करता है। ब्रीदिंग आप करिए, जैसे कि इसमें एक ब्रीदिंग मैं बताऊंगी, जैसे कि हमारा लेफ़्ट और राइट नॉस्ट्रल होते हैं, तो अगर आप लेफ़्ट नॉस्ट्रल करेंगे तो आप रिलैक्स ज़्यादा होते हैं। तो लेफ़्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग ज़्यादा होगी तो आपका बॉडी जल्दी रिलैक्स हो जाती है, और राइट आपकी एक्टिव होती है, तो इसमें ब्रीदिंग ज़्यादा करेंगे तो आपकी ये एक्टिव हो जाता है बॉडी। तो मेनोपॉज के टाइम पे आप लेफ़्ट ब्रीदिंग करना शुरू करें ताकि आपको स्ट्रेस से रिलैक्स मिलेगा, एंजाइटी नहीं होगी आपको, और आपकी स्लीप बेटर हो जाएगी। फिज़िकली आपको डेफिनेटली अगर आप करेंगे तो आपके जो जॉइंट्स पेन हैं वो आपको इतना पता नहीं चलेगा, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, आपके जो पेन्स एक्स आ रहे हैं बॉडी में वो सब नहीं आपको फील होंगे। तो एक बहुत स्मूथ तरीके से आपका मेनोपॉज जाएगा। और आप इमोशनल सपोर्ट डेफिनेटली, जब आप मेडिटेशन, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप फिज़िकल कर रहे हैं, तो आप जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको जो इमोशनल सपोर्ट है वो इमोशनली आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और मुझे लगता है लोगों को ना बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम पे। लेडीज़ अगर बाहर जाएंगी तो बाहर जाने के बाद लोगों से मिलना, बात करना, ये भी एक तरीके की थेरेपी होती है। तो जब आप जाके लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं कि उनको भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो उससे भी आपको स्ट्रेस काफ़ी रिलीफ होता है और इमोशनली आपको बहुत सपोर्ट मिलता है इससे।
और आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं। जब आप मेनोपॉज में योगा करते हैं तो जो आपके जो डिसबैलेंस होता है हार्मोन के अंदर, वो सब चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो कि गुड फॉर, मैं वही कहूँगी योगा करेंगे तो आपको मेनोपॉज बहुत स्मूथ जाएगा। एक्स, पेन्स, स्ट्रेस, सारा सब चीज़ें आपको एक बहुत ना के बराबर फील होंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना स्मूथ तरीके से उस फेस को क्लियर कर लिया, आपने पास कर लिया। तो मुझे लगता है कि आप जितना हो सके उतना ट्राई करें, 15-20 मिनट से स्टार्ट करें, धीरे धीरे स्टार्ट करें, तो आपको उसका फ़र्क आपको दिखाई देगा। थैंक यू सो मच, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है मेनोपॉज के। मैं एक बार ही फिर बता दूं आपको, अगर आपने और इन्फॉर्मेशन जो उनसे मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज के बारे में जानना चाहते तो हमारा यूट्यूब पर ऑलरेडी एक हमने एपिसोड मीरा के साथ किया था, जिसमें हमने पूरी तरह बताया था कि प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज क्या होता है। तो कई बार होता है हमारे कई जो उनसे प्रोग्राम देख रहे हैं उनको पता नहीं है कि प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज क्या है, तो ज़रूर यूट्यूब पर जाकर देखिए, हमने एक एपिसोड पूरा इस पर किया था प्री मेनोपॉज एंड मेनोपॉज के बारे में। तो डेफिनेटली आई थिंक जो उनसा ग्रुप में हम सेशंस करते हैं, जैसे कि पूजा करते हैं सेशन लेडीज़ के साथ, उसमें क्या होता है कि एक आपकी यूनिटी बन जाती है, फ्रेंडशिप बन जाती है, एक दूसरे से आप क्वेश्चन एक्सचेंज कर सकते हैं। और जो उनसे योगा टीचर होता है उसको भी एक ऑफ़र मिलता है कि इतने लोगों का एक्सपीरियंस देखना, कितनी अचीवमेंट हुई है, तो वो भी आपको बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और एक दूसरे को देखकर हम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं कि हम उससे थोड़ा सा बेटर करें। आई थिंक दैट्स द ट्रिक इज ऑल। पर मुझे ये मालूम नहीं है कि पूजा जो उनसे अपने स्पेशल स्टूडेंट्स जो उनसे अगर ज़्यादा बढ़िया करते हैं उसको प्रेज़ भी करते हैं, किस तरीके से प्रेज़ करते हैं? क्या कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है उनको पूजा? हाँ, सर्टिफिकेट यही है कि उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है। दैट इज़ द बेस्ट सर्टिफिकेट आई थिंक सबके लिए। और उससे अच्छा सर्टिफिकेट कुछ नहीं है कि आप बेटर फील कर रहे हैं मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। तो ये आपका बेस्ट सर्टिफिकेट है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को डेफिनेटली एनकरेज करती हूँ, बहुत एनकरेज करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा भी करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। जैसे अभी मैं आपको मेनोपॉज में जैसे बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं। कैट काओ स्ट्रेच है, लंजेस हैं, फॉरवर्ड फेसिंग हीरो पोज है, चाइल्ड पोज है। पर जितना अच्छा है कि आप बाहर निकलिए, बाहर जाके ग्रुप क्लासेस लीजिए। उसमें क्या होता है ना, आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर भी कर सकते हैं इंस्ट्रक्टर के साथ में। सो होपफुली आने वाले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ पूजा जी ਨੂੰ बुला के होर ਜਿਹੜੇ एक्सरसाइज पोजेस है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करांगे। बट थोड़ा जिहा मैं इन्हां कोलों पहले जान लवां कि मैंटल हेल्थ ਜਿਹੜੀ हैगी मैंस की ਉਹਦੇ बारे। सो पूजा, मैं थोड़ा सा तुमसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हमने बच्चों के बारे में भी बात कर लिया है, वुमेंस के बारे में भी बात कर लिया, एंड वी गॉट अबाउट 2.5 मिनट्स। थोड़ा सा आप जो उनसे आदमी है, स्पेशली दे गो थ्रू इमोशनल, काफ़ी वो शेयर नहीं कर पाते हमारी सोसाइटी में, तो कुछ ऐसे योगास जो उनसे है आप उनको अगर रेकमेंड करें जो उनसे हमारे मैंस हैं उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए, कि कौन से योगास वो कर सकते हैं जिनसे उनकी मेंटल हेल्थ स्पेशली जो उनसे इम्प्रूव हो सके? हाँ, मतलब ये मैं मेंस के लिए भी है और बाकी सब भी कर सकते हैं। So everybody, सबके लिए है ये। जो मेंटल जो इसमें आप कर सकते हैं, तो फिज़िकल जो पोज करते हैं, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही थी बाहर कि हमारा जो बॉडी का मेन हिप एरिया है, जो पेल्विक रीजन है, वो सबसे ज़्यादा इमोशन को होल्ड करता है। तो जितने भी जो योगा पोजेस हैं जो कि हिप ओपनिंग होते हैं वो कीजिए, वो बहुत अच्छे होते हैं। उनसे आप मेंटल हेल्थ आपकी बहुत बेटर होती है। तो जितना ज़्यादा वो रिलीज़ होंगे उतना अच्छा आपको फील होगा। बाकी मेडिटेशन करिए, 5 मिनट से शुरू करिए, आप 15 मिनट तक करिए, 20 मिनट, जितना आप कर सकते हैं कंफर्टेबली वो करिए। उससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती है। तीसरा आपका जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, आप 1-2 एक्सरसाइज लीजिए, भ्रामरी कीजिए जैसे, और आप क्या नाम है, इनहेल एक्सेल वाली ब्रीदिंग कर सकते हैं। ये सारी ब्रीदिंग है, बैठे बैठे आप आराम से कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए। तो चेयर पे बैठ के आप आराम से थोड़ी देर आंखें बंद करके अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप छोटे छोटे पोज हैं, स्ट्रेचिंग्स हैं चेयर पे बैठ के, वो करिए, उससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती है। तो ये बेटर
है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट सबके बारे में सोचना चाहिए। सो पूजा ने यही सोचा कि सबके लिए एक ही बार बता देती हूँ बिफोर बिल के कि सिर्फ अब मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। बट हम जरूर एक जो सा प्रोग्राम है हमारा फॉर स्पेशली फॉर मैंस के लिए करेंगे, योगा फॉर मैन, जो उसमें हम स्पेसिफिकली सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। एंड होपफुली पूजा विल बी एबल टू डू सम पोजेस इज वेल उस टाइम पर कि कौन से कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, या योगा के जो से आसन वगैरह जो से लगाते हैं वो किस तरीके से करने चाहिए, और ध्यान जो सा है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करेंगे। पूजा, एक लास्ट मैसेज हो जाए तुम्हारी तरफ से। मैं कहूँगी योगा करने का कोई राइट टाइम, राइट एज ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी योगा स्टार्ट कर सकते हैं और आज से ही अपनी लाइफ में योगा को ऐड कीजिए और उसके बेनिफिट्स लीजिए, और आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा ये आपकी लाइफ का। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा। सो ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਮੇਨਲੀ ਯੋਗਾ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਾਈਂਡ, ਬਾਡੀ ਐਂਡ ਸੋਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।